Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will explain about the adverse effect or ill effects of urea when it is applied in high dose or in excess amount. Urea is very popular nitrogen fertilizer. It is widely used in our country and other countries as well, and nitrogen content is very high, solid fertilizer, so it is very popular among farmers, and it has very quick effect on plant with respect to growth and height and yield. When you apply the urea on the plants, the color is changed, color become green, plant height increases, growth increases, and yield increases. But when this urea is applied in excess amount, more than the recommended dose or more than the plant requirement, then it shows adverse effect. There are several ill effects of urea on the plant, on the soil, on the ecosystem, on the atmosphere, as well as human health. So we will discuss about these ill effects. As far as urea is concerned, it is very important nitrogen fertilizer when it is applied in adequate amount. In adequate amount, then we get advantages, several advantages on plant growth and yield. But the problem is that when farmer apply the urea and leaf color become green, plant height increases, then he thinks that I should apply more urea so that I can get more yield. तो ये कंसेप्ट बहुत गलत है कि जब हम यूरिया अप्लाई करते हैं तो हमें कलर चेंज नज़र आता है, ग्रीन हो जाती है, प्लांट हाइट बढ़ती है, और ये सोचते हैं फार्मर कि हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो हमें बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, ज़्यादा यील्ड मिलेगी। ये मिसकंसेप्शन है, और इससे क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट हम डालते हैं, ज़्यादा अमाउंट डालते हैं, देन इट बिकम लीथल, इट बिकम टॉक्सिक एंड इट शो इल इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स। तो दिस इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट द यूरिया। यहाँ प्रॉब्लम यूरिया की नहीं है, प्रॉब्लम इज अमाउंट। ये हमको ध्यान रखना है कि इसकी अमाउंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। व्हेन इट इज इन एडिक्वेट देन वी गेट good yield, and when amount is excess then there are toxic and ill effects. प्लांट ग्रोथ भी पुअर हो जाती है, सॉइल में एडवर्स इफेक्ट आते हैं, एटमॉस्फेयर पे भी बैड इम्पैक्ट आते हैं। उसी इम्पैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमको ये समझने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि यूरिया का एज सच कोई गलत इम्पैक्ट नहीं होता है। ये एक बहुत पॉपुलर फर्टिलाइजर है, 46% नाइट्रोजन है, और कोई भी दूसरा ऐसा कोई सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं कि जो इतनी हाई नाइट्रोजन कंटेंट हो। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं प्लांट्स पे। प्रॉब्लम इज इट्स अमाउंट। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, इस बात को हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि अमाउंट ऑफ यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज अप्लाइड इन लेस अमाउंट देन वी कैन नॉट गेट द फुल एडवांटेज ऑफ दिस नाइट्रोजन। इफ इट इज अप्लाइड इन हाई अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, जो रिकमेंडेड डोज है यूरिया की नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा हम अगर यूरिया अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर आर सेवरल एडवर्स इफेक्ट। तो उसी एडवर्स इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एडवर्स इफेक्ट हैं जो हाई अमाउंट ऑफ यूरिया से होते हैं। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, ये जो एडवर्स इफेक्ट है, दीज एडवर्स इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू हाई डोज ऑफ यूरिया। यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। High or excess means more than requirement, and excess dose of urea or amount of urea. Then अगर हम प्लांट्स की अगर हम करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी में स्टडी करते हैं इसकी। इन केस ऑफ प्लांट्स, तो हाई अमाउंट ऑफ यूरिया कॉज इंजरी टू सीडलिंग्स। व्हाई देयर इज ए इंजरी टू सीडलिंग्स? द इमर्जिंग सीडलिंग्स, germinating seedlings injured or damaged due to high amount of urea. Suppose these are urea granules and these are seeds. Suppose this is emergence and germination process, then during the hydrolysis of urea, when urea is hydrolyzed, then it makes ammonium ion and carbon dioxide. This is a different chemical process, and during the hydrolysis it create ammonia.
and when this is present in excess amount, high amount, it means there will be more release of ammonia, and then this ammonia will affect the emerging or germinating seedlings. So ऐसा नहीं है कि यूरिया से बर्निंग नहीं होगी, क्रॉप बर्न हो जाएगी, अब इतना सीडलिंग बर्न होगा, सीडलिंग की बर्निंग हो जाएगी। तो हमको बेसल डोज में जो फर्टिलाइजर है यूरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज देयर इज अमोनिया प्रोडक्शन, अमोनिया का प्रोडक्शन होता ही है और उससे क्या होगा, ये अमोनिया टॉक्सिक हो जाएगी। सेकेंड इज दैट व्हेन अमोनिया इज रिलीज, सो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ दिस NH2CO, NH2 जो फार्मूला है यूरिया का, NH2 होल ट्वाइस CO, and it produce the ammonia by production of ammonium ion, and during this process there is consumption of hydrogen ion. तो पहले NH2 होते हैं, ये NH2 क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम करते हैं, then ammonia is produced. So here consumption of means हाइड्रोजन आयन इससे अटैच होते हैं, then ammonia ion and ammonia production take place. अब देखिए सिस्टम से, सॉइल सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आयन का यूज हो जाएगा, then pH increases. So here pH increases and high pH is high, alkaline, and this high pH in immediate vicinity of urea particle, यूरिया का जो ग्रेन्यूल है उसके आसपास की pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी during hydrolysis of urea, because when there is a conversion of this NH2 group to ammonium ion, देखिए NH2 से अमोनियम आयन बन रहे हैं, तो ये एक केमिस्ट्री का प्रोसेस है। जब अमोनियम, इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयन का यहाँ अटैच होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएंगे, सॉइल सॉल्यूशन से आएंगे या सॉइल पार्टिकल्स आएंगे। जब हाइड्रोजन आयन कंज्यूम हो गए तो पीएच क्या बढ़ जाएगी, और सॉल्यूशन सिस्टम में अगर हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाते हैं तो पीएच कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। हियर देयर इज अ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट्स व्हाई पीएच इंक्रीजेज, एंड देन इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ पार्टिकल बिकॉज ऑफ हाई पीएच इमर्जिंग सीडलिंग्स पे एल्किनिटी इफेक्ट आएंगे। माइक्रोबियल ग्रोथ भी जो होगी हाई पीएच से यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाई पीएच इफेक्ट्स आर शोन एट द इमीडिएट विसिनिटी, उसके पार्टिकल की चारों तरफ हाई पीएच होने के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ रियलाइज्ड होंगे। और यूरिया इज एसिडिक फर्टिलाइजर, तो हम ये जानते हैं यूरिया इज एसिडिक फर्टिलाइजर, तो कैसे इसकी पीएच हाई हो रही है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तो अभी मैंने आपको बता दी कैसे पीएच हाई हो गया, लेकिन यूरिया इज एसिडिक फर्टिलाइजर एंड इट्स एसिडिक इक्विवेलेंट इज 80। तो यूरिया फिर एसिडिक फर्टिलाइजर क्यों है जबकि इसके डालने से पीएच बढ़ रही है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले इसको समझ लें। When urea is applied in high dose, then there is ammonia production, and this ammonia is toxic to this emerging seedling, germinating seedling. Then in immediate vicinity pH increases, and because of this increase in pH, microbial growth is affected, nutrient availability is affected. So this is the impact of or adverse effect of excess dose. ये हमको समझना है कि excess dose के इफेक्ट हैं। अगर ये नॉर्मल डोज में होगी तो अमोनिया स्केप कर जाएगी, इतनी ज़्यादा इसमें इंजरी नहीं करेगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द प्लांट्स व्हेन यूरिया इज अप्लाइड, देयर इज इंजरी टू सीडलिंग। अनदर प्रॉब्लम विद द हाई डोज इज दैट सपोज क्रॉप इज इन द फील्ड, ओके, एंड यूरिया इज टॉप ड्रेस्ड और साइड ड्रेस्ड, ओके, सो यूरिया is on soil surface and moisture is low, then this urea concentration increases, then it causes burn, crop burn. So this is another problem with the crop burning if urea is applied at high dose. तो यूरिया सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे मॉइस्चर उतना है नहीं कि उसको पूरा हाइड्रोलिसिस करे, तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने से क्रॉप बर्न होगा, और जो मेजर प्रॉब्लम है सीडलिंग इंजरी की है। सो दैट्स व्हाई यूरिया शुड बी अप्लाइड इन रिकमेंडेड डोज। अगर बेसल में डाल रहे हैं तो भी हमें रिकमेंडेड डोज यूज करनी चाहिए। वी आर यूजिंग ए साइड ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग, देन अप्लाइड एट इन रिकमेंडेड डोज। अदरवाइज ज़्यादा यूरिया आप डालेंगे खेत में और मॉइस्चर नहीं है तो वहाँ क्रॉप बर्न होता है। इसी तरह से फोलियर स्प्रे में भी जब हम 2% का यूरिया स्प्रे करते हैं, 2% यूरिया स्प्रे, इफ दिस अमाउंट इज इंक्रीज 3%, 4%, 5%, देन देयर इज अ लीफ इंजरी बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। जो आयंस होते हैं ये आयन टॉक्सिसिटी करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो किससे हो रही है वो सॉइल में अमोनिया की वजह से हो रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन प्लांट्स। Then another problem is that if nitrogen urea is applied in excess amount, then plant absorb the ions, nitrate ion. There is a conversion of ammonium to nitrate. Then this nitrate is absorbed. Ammonium
also absorbed. Then there is a cell division, protoplasm increase करता है, सेल डिवीजन होता है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, देन प्लांट हाइट इंक्रीजेज. इसी कारण से क्या होगा, यूरिया डालने के बाद प्लांट हाइट इंक्रीज करती है. बट व्हेन इट इज अप्लाइड इन एक्सेस डोज, देन देयर इज ए मोर इंक्रीज, मोर प्लांट हाइट बढ़ेगी, देन देयर आर चांसेस ऑफ लॉजिंग. तो लॉजिंग इज प्रॉब्लम, क्रॉप लॉजिंग. सो हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मीन यूरिया इज एसोसिएटेड विद द क्रॉप लॉजिंग. एंड टॉल क्रॉप ससेप्टिबल है, जैसे कि मेज ससेप्टिबल है, हाई अमाउंट में डालेंगे तो लॉजिंग होगा, शुगर केन में लॉजिंग होगा, सोरगम में लॉजिंग होगा, इफ इट इज अप्लाइड इन हाई अमाउंट. वीट में भी लॉजिंग होगी अगर बहुत ज़्यादा हम नाइट्रोजन को डालते हैं. सो दिस इज द रीजन दैट क्रॉप्स आर ससेप्टिबल टू लॉजिंग व्हेन नाइट्रोजन और यूरिया इज अप्लाइड इन हाई अमाउंट. सो ये देखिए क्या एडवर्स इंपैक्ट है. जब क्रॉप लॉज हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तो डेफिनेटली उसकी यील्ड कम होगी. Second adverse impact is that when nitrogen is applied, then nitrates are absorbed, ammonium are absorbed, and this nitrogen is not properly metabolized, because for nitrogen metabolism means for metabolize it into protein, other nutrients are also required. So there should be balanced ratio of nutrients in the plant. किसी भी प्लांट के अंदर बैलेंस्ड रेशियो होना चाहिए, तभी कोई न्यूट्रिएंट प्रॉपरली मेटाबोलाइज होता है. हमने क्या किया है, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा दे दी, लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो हमने नहीं दिए, सल्फर हमने उतनी अमाउंट में नहीं दी. तो नाइट्रोजन प्रोटीन में सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन को प्रोटीन सिंथेसिस में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी मींस एटीपी एंड एटीपी. ये किससे आएगी, फास्फोरस से, वो हमने उतना दिया नहीं. एंजाइम एक्टिवेट होने चाहिए, वो किससे होते हैं, पोटेशियम से होते हैं, वो हमने दिया नहीं, पोटेशियम दिया नहीं. तो क्या होगा, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी, अमीनो एसिड्स में रहेगी या नाइट्रेट फॉर्म में रहेगी. एंड दिस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन किसको चाहिए, इंसेक्ट्स को भी चाहिए, डिसीजेस को भी चाहिए. तो इसी कारण से वो क्या होता है, इंसेक्ट और डिसीज का अटैक ज्यादा होगा. इंसेक्ट एंड डिसीज, insect infestation and disease infection are more when nitrogen is applied in excess amount. तो यूरिया में तो जब यूरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाली जाती है, तो राइस में तो बहुत पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ब्लाइट वगैरह ज़्यादा आती है नाइट्रोजन डालने से. इंसेक्ट का अटैक भी क्रॉप्स में बढ़ जाता है अगर हम नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, बिकॉज नाइट्रोजन रिमेन इन सॉल्युबल फॉर्म एंड दिस नाइट्रोजन आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म. तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी नाइट्रोजन चाहिए. इसी कारण से हम बहुत ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो उसमें डिसीज आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे. तो हम इनको प्रिवेंट करना है, इनका इन्फेक्शन कम करना है या इंसेक्ट को अटैक कम करना है, तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस्ड अमाउंट में डालें विद अदर न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इज द impact of excess dose of nitrogen on plants. Another impact is that when urea is applied in excess amount, then weeds absorb this nitrogen. This जो नाइट्रोजन यूरिया हमने डाली है वो वीड्स भी ले लेंगे, तो वीड्स ग्रोथ इंक्रीजेस. तो क्योंकि देखिए जो हमने ये क्रॉप रो है, ये क्रॉप रो है और हमने यहाँ यूरिया बीच में डाला है, पूरे क्रॉप में डाला है, तो ये जो बीच का एरिया यहाँ वीड्स ग्रो करते हैं. नाउ वीड्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द यूरिया, देन वीड्स ग्रोथ इंक्रीजेस रैपिडली, क्विकली. तो वीड्स की जब ग्रोथ बढ़ेगी तो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी वीड्स की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, देन डेफिनेटली प्लांट ग्रोथ सप्रेसेस. तो ऐसे केस में प्लांट ग्रोथ कम हो जाएगी और यील्ड भी क्या होगी, कम होगी. तो वीड्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम यूरिया को ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं. सो दैट्स वाई इट इज सजेस्टेड दैट अप्लाइड द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन थ्रू यूरिया. बहुत ज़्यादा नहीं डालना है. हमने तो क्या देखा, शुरू में हम बेसल में डाल रहे हैं, सीडलिंग इंजरी हो जा रही है, सीडलिंग जल जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, साइड ड्रेसिंग टॉप ड्रेसिंग जा रहे हैं, क्रॉप बर्निंग है, इंसेक्ट डिसीज इन्फेक्शन आर मोर, लॉजिंग इज मोर. तो ओवरऑल ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो जो हमको बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिल रहे थे यूरिया के रिकमेंडेड डोज पे, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे नेगेटिव इंपैक्ट्स में, इल इफेक्ट्स में. तो ये किसके कारण हो रहा है, दिस इज ड्यू टू एक्सेस डोज, हाई डोज ऑफ यूरिया. सो दिस इज द impact of high dose of urea on plants. Now on soil, what is the impact of urea on soil? Actually urea is acidic fertilizer, जैसे मैंने भी आपको बताया, its acidic equivalent is 80. On soil it create this is acidic fertilizer. Urea is acidic fertilizer and its acid equivalent is 80. Means the acidity produced by 100 kg यूरिया, 100 kg यूरिया से जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है, 100 kg यूरिया एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट. सो दिस इज द इक्विवेलेंट एसिडिटी. मीन्स कि हमने 100 kg यूरिया डाला, देन इट क्रिएट एसिडिटी इन सॉइल एंड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिटी 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड. अभी हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ यूरिया देयर इज ए अमोनिया
formation, and this ammonia raise the pH, and immediate vicinity pH is increased. So this NH2 whole twice CO is applied, then ammonia formation is there, and this ammonia increases and it cause the injury and raise the pH. अमोनिया की खुद की pH भी बहुत ज़्यादा होती है, और during this process consumption of hydrogen ion, so that's why there is increase in pH. But this take place at the, ये suppose हम यूरिया का पार्टिकल मान लें, it takes the immediate vicinity. But when there is a proper hydrolysis and then this ammonia converted into ammonium ion, then this ammonium ion converted into nitrate ion, nitrification process, और इस nitrification, यही ammonium and these nitrate ions are absorbed by plants, and this is the nitrification process. And during the nitrification process there is a release of hydrogen ion. तो यहाँ इस process में hydrogen ion release होते हैं. पहला तो ये hydrogen ions are released. So during the nitrification process hydrogen ions are released. These are different chemistry, and when hydrogen ions are added into the environment, definitely pH decreases. तो जो अमोनियम बना, अमोनियम से नाइट्रेट आना, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से, ये एक तो कोई भी फर्टिलाइजर हो तो ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन पीएच डिक्रीजेस. ये तो सभी फर्टिलाइजर के साथ ऐसा होगा जो अमोनियम से नाइट्रेट में जा रहे होंगे. बट इन केस ऑफ यूरिया, व्हेन दिस अमोनियम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जब हमने एक्सेस डाला है इसको, तो जब पोटेशियम है या दूसरे आयंस हैं, देन अमोनियम रिप्लेस दिस बेस फॉर्मिंग कैटायन, एंड दीज बेस फॉर्मिंग कैटायन कैल्शियम, मैग्नीशियम और come into soil solution and they leach down. अब जब बेस फॉर्मिंग कैटायंस कम हो जाएंगे तो सॉइल एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. सो दिस इज द रीजन दैट द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ यूरिया ऑन सॉइल इज एसिडिक. बट द इमीडिएट विसिनिटी, अगर हम यूरिया के पार्टिकल के चारों तरफ देखें, देन पीएच इंक्रीजेज, बट ओवरऑल इंपैक्ट ऑन सॉइल इज एसिडिक. तो जो हम 1 हेक्टेयर एरिया में अगर हम 100 kg यूरिया डाल रहे हैं, उसका ओवरऑल इंपैक्ट देखें तो वहां अमोनियम आयन ये इक्वलेंट है, ये तभी होगा मान लीजिए. लेकिन अगर ये अमोनियम आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाए, तब ये प्रोसेस कम होगा. लेकिन ये मानते हैं कि जो अमोनियम आयन है वो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, और उस रिप्लेसमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है. हालांकि ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे अमोनियम आयन इन सबको रिप्लेस कर दें, क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ का नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, कुछ वीड्स ले लेंगे. लेकिन in chemistry term, when ammonium ion replace this ion, then there is a acidity formation. तो ये प्रोसेस, इसका मतलब यूरिया का जो अमोनियम आयन के थ्रू जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, इट कॉजेज द एसिडिटी. दैट्स व्हाई यूरिया इज considered as acidic fertilizer. So this is the impact of urea on soil, that it create the overall acidity. So this is the impact. Then another impact, adverse effect of excess dose. तो अब देखिए, जब ये सॉइल में भी एसिडिटी तभी होगी जब हम यूरिया को बहुत एक्सेस अमाउंट में डाल रहे हैं, तभी ये एसिडिटी करेगा. देन ऑन थर्ड इम्पैक्ट इज ऑन वाटर क्वालिटी. वाटर क्वालिटी in aquifers, water streams and groundwater. Actually, this ammonium ions are produced from urea. Then these nitrate ions are formed due to nitrification process, and then these nitrate ions are absorbed by plants. Absorbed by plants if it is these ions are present in adequate amount, means according to plant need. तो अगर प्लांट की जितनी नीड है उतने नाइट्रेट आयन है, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. बट इफ दीज आर excess nitrate ion and then these are not absorbed by the plant, क्योंकि प्लांट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, then these nitrate ions are highly mobile in soil, क्योंकि सॉइल पे भी पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. यदि क्ले पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं. दैट्स वाई दिस क्ले पार्टिकल्स होल्ड पॉजिटिव आयंस, कैटायंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम. यहाँ नाइट्रेट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, देयर इज अ रिपल्शन. दैट्स वाई नाइट्रेट लीच्ड डाउन, लीच्ड इनटू द ग्राउंड वाटर, देन इट रीच इनटू द ग्राउंड वाटर. तो हमने बहुत ज़्यादा यूरिया डाल दिया, तब क्या बनेगा? नाइट्रेट्स बनेंगे, और नाइट्रेट उतने एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो लीच होके कहाँ जाएंगे? ग्राउंड वाटर में आ जाएंगे. एंड व्हेन दिस ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट
एंड इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अभी ग्राउंड वाटर में हमने पंप लगा दिया है, ट्यूबवेल लगाया है या हैंड पंप लगाया है, तो उससे क्या होगा, पानी उसको हम यूज कर रहे हैं, एंड व्हेन दिस इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग, then nitrate level is high, very high in water and it creates a problem. So जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग जो नाइट्रेट है इट शुड नॉट बी मोर देन 50 मिलीग्राम पर लीटर वाटर, नाइट्रेट आयंस। ड्रिंकिंग वाटर में अगर 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अगर नाइट्रेट आयंस हैं देन दिस क्रिएट द प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। तो ये जो नाइट्रेट आयंस हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करते हैं, किडनी पे, लीवर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कैंसरजेनिक है, कैंसर होता है नाइट्रेट आयन से। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम देखिए बहुत ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, नाइट्रेट बनेगा, लीच होकर ग्राउंड वाटर में आएगा और उस वाटर को हम पी रहे हैं, ऐसे एरिया में नाइट्रेट्स हमारे उसमें आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएगा, ह्यूमन हेल्थ को करेगा, चिल्ड्रन को करेगा, कैटल को भी करेगा। तो नाइट्रेट आयन की जो लिमिट है WHO ने जो बताई है दैट इज 50 मिलीग्राम पर लीटर। इट शुड नॉट बी मोर देन 50 मिलीग्राम पर लीटर। और इसको अगर हम नाइट्रेट नाइट्रोजन में अगर कन्वर्ट करते हैं, ये तो नाइट्रेट की लिमिट है, अगर जो नाइट्रेट नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है 14 और ऑक्सीजन कितना है ये 48, तो कितना हुआ 62। तो जो नाइट्रेट नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन हुआ 14/62, इससे जो हम निकालेंगे कन्वर्जन करके तो ये जो वैल्यू आएगी करीब 11 मिलीग्राम नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो ये किसी एग्जामिनेशन पूछा सकता है नाइट्रेट नाइट्रोजन का लेवल। तो दिस इज द नाइट्रेट नाइट्रोजन 11 मिलीग्राम पर लीटर। तो आप 50 मिलीग्राम याद रखिए और इस कन्वर्जन फैक्टर से निकाल लीजिए, अबाउट 10 मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रेट नाइट्रोजन। अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम करती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड दिस नाइट्रेट एक्चुअली क्या करता है, नाइट्रेट combined with the hemoglobin and it make the meth hemoglobin and then the oxygen carrying capacity of this meth hemoglobin reduces। तो अब ये नाइट्रेट हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता था, अब ऑक्सीजन की जगह नाइट्रेट आ जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया उस नाइट्रेट जो ड्रिंकिंग वाटर में आ रहा था, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और उस हीमोग्लोबिन को बोलते हैं मैट हेमोग्लोबिन। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज मैट हेमोग्लोबिनीमिया एंड दिस इज हाईली टॉक्सिक और लीथल टू चिल्ड्रन पर्टिकुलरली हु आर लेस देन 6 मंथ। जो बच्चे 6 मंथ से छोटे हैं उनके लिए बहुत ही ये लीथल है एंड इट कॉज द डेथ ऑफ सच चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चे जो 6 मंथ से कम के हैं वो उनमें अगर मैट हीमोग्लोबिनिया होता है तो उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है, उनकी बॉडी ब्लू पड़ जाती है एंड दिस इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपको पता चला होगा कि व्हाट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। इट इज चिल्ड्रन में होती है खासतौर से जो 6 मंथ से कम है क्योंकि मैट हेमोग्लोबिनिया की प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ हाई डोज ऑफ यूरिया। तो जिन एरिया में यूरिया को बहुत ज्यादा अमाउंट में डाला जा रहा है वहां नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में आएगा और वो डेफिनेटली हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा, कैटल को करेगा, एनिमल को करेगा, जो उस पानी को पिएगा सबको करेगा। और खासतौर से वो लीथल है किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑन वाटर quality. It means aquifer water ecosystem is adversely affected. Then another adverse impact is on atmosphere, air quality. We can say atmosphere पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हमने डिस्कस किया प्लांट पे, सॉइल पे, वाटर इकोसिस्टम पे, वाटर जो ग्राउंड वाटर है उस पे, एटमॉस्फेयर पे। व्हेन यूरिया इज अप्लाइड ऑन सॉइल विच हैव हाई pH, देन अमोनिया प्रोडक्शन इज मोर and then this ammonia escape into the atmosphere and this process is known as volatilization. So through volatilization process ammonia is escaped into the atmosphere and then it disturbs the gaseous composition in atmosphere. So air quality is deteriorated and this occur in particularly in high pH soil and temperature is high temperature, high pH
and high moisture. So this problem is very common. This is known as volatilization. Another is that denitrification. If denitrification के थ्रू भी देखिए, अगर यूरिया हम डाल रहे हैं और उसके बाद उसमें वाटर लॉगिंग हो जाए, या रेनफॉल हो जाए, देन एनरोबिक कंडीशन एग्जिस्ट एंड देन अमोनियम से जो नाइट्रेट बने थे, दिस नाइट्रेट जो ऑक्सीजन है, दिस oxygen is consumed by microbes and then nitrous oxides are formed and green gas houses are produced. So this is another adverse impact on atmosphere through volatilization, ammonia gas production, and through denitrification, nitrous oxide, nitric oxide, different type की nitrogen oxide gases निकलती हैं, और ये जो गैस है ग्रीन हाउस गैस है, this is lethal and toxic to all living systems. So this is an adverse impact on atmosphere. Another impact is on eutrophication. Water ecosystem भी यहाँ से adversely affected होता है. In eutrophication there is a algal bloom. Suppose ये हमने ये soil है, इसमें हमने यूरिया अप्लाई किया है, and then this soil is eroded through soil erosion. Through soil erosion, नाइट्रोजन रीच टू, और थ्रू ग्राउंड वाटर के थ्रू जा सकती है, या रेन वाटर के साथ थ्रू जा सकती है, रन ऑफ वाटर के साथ, या इरिगेशन वाटर के साथ. दिस नाइट्रोजन रीच टू वाटर बॉडीज. अब यहां नाइट्रोजन वाटर बॉडीज में पहुंच जाएगी तो क्या होगा, और सॉइल इरोजन हो रहा था, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचेंगे, फास्फोरस पहुंचेगी, नाइट्रोजन तो ज़्यादा पहुंच रही है क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट में डाल रखी है, सॉइल में ज़्यादा है. देन इट कॉज दी एल्गी ग्रोथ, वेरी रैपिड एंड हाई ग्रोथ ऑफ एल्गी, दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. जब एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आल्सो नोन एज एल्गल ब्लूम. अब ये एल्गी क्या करेगी, क्योंकि इसे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, नाइट्रोजन मिल गई, तुरंत उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो ऑक्सीजन जो वाटर बॉडीज के अंदर डिजॉल्व थी उसको यूज कर लेगी. देन अदर एक्वेटिक बायोटा लाइफ इज एडवर्सली अफेक्टेड. तो उसके अंदर जो फिश हैं या दूसरे जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट आता है. जो दूसरे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी एडवर्सली अफेक्टेड होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. तो ये प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब सॉइल इरोजन हो जाए, यूरिया हमने बहुत डाल रखी है और रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, तो उस पानी के साथ बहकर कहाँ जाएगी, वाटर बॉडीज में जाएगी, वाटर स्ट्रीम्स में या वाटर लैक्स में, तो वहाँ एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. और जब एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम. और एल्गल ब्लूम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो सोलर रेडिएशन पूरी वाटर बॉडीज में नहीं जाने देगी. वाटर इकोसिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड. ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो फिश पे इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट आता है. सो दीज आर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हाई डोज ऑफ यूरिया. तो यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है, दीज एडवर्स इम्पैक्ट आर ड्यू टू हाई एप्लीकेशन ऑफ यूरिया. यूरिया तो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का, इफ इट इज अप्लाइड इन रिकमेंडेड डोज. अगर हम रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा में अप्लाई कर रहे हैं तब ये हमको एडवर्स इफेक्ट नजर आते हैं. दैट्स वाई वी शुड अप्लाई द यूरिया इन रिकमेंडेड डोज. रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा हम उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए. हमको भले ही लगता हो कि इससे ग्रीन कलर बढ़ रहा है, प्लांट हाइट बढ़ रही है, बट वी शुड अप्लाई यूरिया नाइट्रोजन इन रिकमेंडेड डोज. अदरवाइज देर आर सेवरल एडवर्स इफेक्ट ऑन टोटल इन्वायरमेंट, सॉइल इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ. पर्टिकुलरली बच्चों की देखिए डेथ हो जा रही है थ्रू ब्लू बेबी सिंड्रोम. दैट्स वाई वी शुड अप्लाई यूरिया इन रिकमेंडेड डोज. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.